गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ना, नेम ऑफ द टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करना है, और वी कैन से दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में, तो हम क्या कहेंगे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट in which there are large number of buyers and sellers of homogeneous commodity and industry is price maker, firm is price taker। कैसे डिफाइन किया कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। किसके बेटा जी? होमोजीनियस कमोडिटी के, जहां इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फर्म प्राइस टेकर है, इसलिए सेम प्राइस प्रिवेल करता है। फिर बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की फीचर्स और असम्पशंस की। ये सब हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिलहाल हम सिर्फ इनको रिवाइज कर रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं। फीचर्स और assumptions, or we can say that properties of perfect competition market। First is large number of buyers and sellers but स्मॉल साइज, कि बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बट कंप्लीट मार्केट के कंपैरिजन में एक सिंगल सेलर या एक सिंगल बायर बहुत छोटा होता है, यानी वो अपने डिमांड और सप्लाई से मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। सेकंड इज homogeneous commodity, means all firms are producing homogeneous commodity, means commodity produced by all the firms are similar in the context of color, size, shape, quality, etc. Third is free entry and exit. We will say that in the long run, new firm can enter and old firm can exit from the market. There is no restriction on the entry and exit of the firm. Fourth is both buyers and sellers have परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। दोनों बायर्स को और सेलर्स को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, और परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि बायर हायर प्राइस पे नहीं करेगा और सेलर लोअर प्राइस चार्ज नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट सेम प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। Fifth is perfect mobility,
perfect mobility means परफेक्ट मोबिलिटी का मीनिंग है बेटा factors of production can move from one form to another form कि factors of production एक फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म में जा सकते हैं where they get higher remuneration यानी जहां उनको ज्यादा मजदूरी मिलेगी वो वहां छोड़कर जा सकते हैं नेक्स्ट इज free from checks. It means no restrictions on the quantity of sale and purchase. It means buyer can purchase any quantity and seller can sell any quantity at given market price. It means there are no restrictions on the quantity of sale and purchase. Government also not impose any kind of restriction on the quantity of sale and purchase. Seventh is same price means same price prevails in the market because industry is price maker and firm is price taker. Eighth, no transportation cost. There is no transportation cost in the perfect competition market. Why there is no transportation cost? Because transportation cost is considered same for all the firms in the market. That's why it is considered as a cost of production and it does not affect market price. और अच्छी तरह से समझने के लिए आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं नेक्स्ट इज नो सेलिंग कॉस्ट अब आप देखिए selling cost means there is not any expenditure on the sales promotion of the commodity. Now why? Because commodity is homogeneous. Both buyers and sellers have perfect knowledge and all are selling at same price. So there is no need to make advertisement, sales promotion expenses on the commodity. Next is AR is equals to MR is equals to price and AR MR curve is parallel to the x-axis. AR is equals to MR, its curve is same line and parallel to the x-axis. Next, elasticity of demand is perfectly elastic because AR curve is the demand curve and AR curve is parallel to the x-axis. अब एक वर्ड मैंने बोला बेटा इस बात को आप सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे और फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन याद रखेंगे हमने बोला AR फॉर्म डिमांड कर्व AR कर्व इज फर्म्स डिमांड कर्व AR कर्व क्या है ये फर्म का डिमांड कर्व है अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व देन आई विल से इट इज AR कर्व और अगर कोई मुझसे पूछता है ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड कर्व देन आई विल से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मैं यहां पे स्टार लगा के लिख रहा हूं ताकि आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या लिखेंगे AR curve it is
फर्म्स डिमांड कर्व, marginal utility curve, it is consumers demand curve. क्लियर और नॉट? इन दो बातों को आप अपनी कॉपी में ध्यान रखेंगे। अब हम करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म एंड इंडस्ट्री। पेज चेंज कर ले, जस्ट वेट फॉर अ मिनट जी। अब सबसे पहले करेंगे बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फर्म का इक्विलिब्रियम करेंगे इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब देखिए जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म का इक्विलिब्रियम करते हैं, सबसे पहले फर्म्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग करेंगे। हम बोलेंगे अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम when it is getting maximum profits or bearing minimum losses। इसका मतलब क्या है कि फर्म उस टाइम इक्विलिब्रियम में है जब या तो फर्म को मिल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर फर्म को हो रहे हैं मिनिमम लॉसेस। अगर मैं इसको बिल्कुल एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं मींस, तो क्या कहेंगे? इट मींस firm has no tendency to change in its output। यानी फर्म अगर किसी तरह के आउटपुट के चेंज की टेंडेंसी में नहीं है, यानी फर्म डू नॉट वांट any type of change in its existing level of output, then firm is in equilibrium। और फर्म उस टाइम इक्विलिब्रियम में होगी, उस टाइम आउटपुट पे चेंज नहीं करेगी जब या तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। अगर बेटे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे हैं तो आउटपुट चेंज करते टाइम फर्म के माइंड में ये डर रहेगा कि कहीं लेवल ऑफ प्रॉफिट कम ना हो जाए। और अगर फर्म मिनिमम लॉसेस बियर कर रही है तो भी आउटपुट चेंज नहीं करेगी, क्योंकि डर रहेगा कि कहीं लॉसेस बढ़ना चाहे। तो इट मींस अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड बियरिंग मिनिमम लॉसेस। अब फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है, एंड दीज टू कंडीशंस आर, हेडिंग बना देते हैं, conditions of firm's equilibrium। जी बेटा, the first condition is firm will produce on that point where MC is equals to MR, और number second MC should be rising। या क्या कहेंगे इसको, और किस तरह से बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट MC cuts the MR from
बिलो। और बेटा हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम इन दो कंडीशंस को ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं? Graphically, we can show that x एक्सिस पे आउटपुट, y एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट. In the perfect competition market, AR is equals to MR and its curve is parallel to the x-axis. MC cuts the MR from below and equilibrium is on point E. Firm will produce OQ level of output. अब यहां E पर दोनों कंडीशन पूरी हो रही है. देखिए आप, MC इज इक्वल्स टू MR है और MC MR को नीचे से कट कर रहा है. शुड बी राइजिंग, यानी इस पॉइंट के बाद MC राइज कर रहा है. एंड दीज टू कंडीशंस आर ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशंस. आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कहां होगा, तो आंसर होगा वेयर MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC शुड बी राइजिंग. व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट? दैट लेवल वेयर MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC शुड बी राइजिंग. अब बच्चा पूछते सर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कैसे है? देख लीजिए, हम इसको प्रूव कर देते हैं. अगर फर्म इससे पहले प्रोड्यूस करे, मान लीजिए OQ ना करके OQ1 करती, कॉस्ट कम थी, रेवेन्यू ज्यादा थी, यू हैव टू सेक्रीफाइस दिस मच ऑफ प्रॉफिट. आपको ये शेडेड पार्ट का प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ता. अगर मान लेते हैं प्रॉफिट का सेक्रीफाइस नहीं करना, तो आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के बाद प्रोड्यूस कीजिए OQ2. यहां रेवेन्यू कम, कॉस्ट ज्यादा. फर्म हैज टू मेक द सेक्रीफाइस ऑफ दिस शेडेड पार्ट. लॉस बियर करना पड़ेगा. तो एक रैशनल फर्म is neither ready to sacrifice the profit nor ready to bear the loss. So firm will be in equilibrium on point E where MC is equals to MR and MC should be rising. अब हमने यहां बातचीत कर ली इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की. अब हम इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन दो अलग अलग पार्ट्स में करेंगे, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में. सर व्हाई? क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा है कि कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन आर डिफरेंट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. जहां शॉर्ट रन में आपको रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलता है, वहीं लॉन्ग रन में आपको रिटर्न्स टू स्केल मिलता है. अभी देखिए जरा, हम बात करेंगे फर्स्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर perfect competition market, and second we will study long run equilibrium of firm under perfect competition market. अब एक एक करके करेंगे. पहले शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम, फिर लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन.
हेडिंग बना लेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब जब शॉर्ट रन की बात करते हैं, आप सब बच्चों ने शॉर्ट रन बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कहेंगे शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, यानी फर्म का सप्लाई पे फुल कंट्रोल नहीं है। हम क्या कहेंगे कि शॉर्ट रन इज दैट टाइम पीरियड is that time period in which some factors of production are fixed। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा जी फिक्स्ड होते हैं। सो फर्म has no full control over supply, thus firm can get following three possibilities। फर्म को फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। अब क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं? ये तीन पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं बेटा। फर्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एंड थर्ड इज मिनिमम लॉसेस। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। फर्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे इन द शॉर्ट रन firm under perfect competition market can get normal profits if average revenue is equals to the average cost। जब फर्म की एवरेज रेवेन्यू इक्वल है किसके? एवरेज कॉस्ट के। एंड बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी हैं दोनों कंडीशंस बेटा? कंडीशंस आर MC is equals to MR and MC should be rising। अब बेटा नॉर्मल प्रॉफिट वो है जहां AR इक्वल्स टू AC है और फर्म की ये इक्विलिब्रियम की प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको अब हम डायग्राम से दिखाएंगे और डायग्राम आपने 3 स्टेप्स में बनाना है। पहले 2 स्टेप्स सभी फिगर में सेम रहेंगे। मैं एक फिगर को आपको 2 बार बना के दिखाऊंगा, आपने भी वही फिगर
2 बार बना के प्रैक्टिस करनी है और फिगर को कभी भी ड्राइंग की तरह नहीं बनाना, 3 स्टेप्स में लॉजिकली बनाना है। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। देखिए पहला स्टेप, अब स्टेप याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेप, on x-axis we are showing output, y-axis revenue and cost. AR is equals to MR. Here we have completed first step. मैंने एक लिख दिया, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। यहां तक बना लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, इक्विलिब्रियम करेंगे, MC is equals to MR and MC should be rising. Equilibrium on point E and firm will produce OQ level of output. Q से E तक एवरेज रेवेन्यू मिलेगी या O से P तक एवरेज रेवेन्यू मिलेगी। Here the second step is completed. यहां 2 कंडीशन इक्विलिब्रियम की पूरी हो चुकी हैं और हर डायग्राम में ये 2 स्टेप्स आर कॉमन। अब थर्ड स्टेप, इक्विलिब्रियम कहां होगा भैया? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। कितनी एवरेज रेवेन्यू मिल रही है? Q से E तक। अब क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट का कहां टेंजेंट होना चाहिए? ऑन पॉइंट E। कहां टेंजेंट होना चाहिए? ऑन पॉइंट E। अब आप क्या करेंगे? E पॉइंट पे पेन रखेंगे, आधा AC इधर को, आधा AC इधर को। इधर E पे पेन रखा और बहुत प्यार से ऐसे गोल 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 गोल, फिर इधर पेन रखा गोल गोल गोल, AR AC बराबर हो गए एंड फर्म इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। AR इज इक्वल टू AC। यहां मैं ऑन पॉइंट E एरो लगा के बता देता हूं, AR इज इक्वल टू AC, इसलिए फर्म इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक छोटा सा डायग्राम इधर और बना देता हूं फॉर प्रैक्टिस सेक। देखिए जरा ध्यान से, 3 स्टेप्स में ये तीसरा स्टेप था जब आपने AC बनाया। पहले 2 इक्विलिब्रियम वाले बिल्कुल सेम। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। आप देखिए फर्स्ट स्टेप, एक्स एक्सिस पे वी आर टेकिंग आउटपुट, y एक्सिस पे वी आर टेकिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट, AR is equals to MR. अब second step, MC cuts the MR from below, equilibrium on point E, OQ प्रोड्यूस कर रहे हैं, OP एवरेज रेवेन्यू मिल रही है या Q से E तक। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप इज AR इज इक्वल टू AC। अब कितनी AR मिल रही है? Q से E तक। AC यहां पे E पॉइंट पे टेंजेंट होना चाहिए। बढ़िया AC कैसे बनेगा? ये देखिए, यहां E पे रखो पेन और मन में प्यार प्यार से बोलते जाओ गोल 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 गोल, फिर यहां पेन रखा गोल 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 गोल। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है, देखिए आपने कभी भी ये काम नहीं करना, आगे दौड़ते जाना है और पीछे छोड़ते जाना है। हम कॉस्ट के रिलेशनशिप में क्या कहते थे कि MC कट्स द AC कर्व एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। देखिए वो रिलेशन भी यहां पर वायलेट नहीं हो रहा एंड फर्म इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक सर छोटा सा माइंड में कंफ्यूजन है और बहुत देर से लटक रहा है, आप नॉर्मल प्रॉफिट कराए जा रहे हो, उस कंफ्यूजन को नहीं निकाल रहे। तो बेटा वो कंफ्यूजन निकाल देते हैं कि सर आप बोल रहे हो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर है एंड फर्म इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे होगा ये नॉर्मल प्रॉफिट? सर इट इज
ब्रेक इवन पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। जहां रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाती हैं वहां हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट है। पर आप क्या बोलते थे आज तक? ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है। जब इकोनॉमिस्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं, ये बॉक्स में बता रहा हूं ध्यान रखना, तो इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट जब एस्टिमेट होती है, वी टेक एक्सप्लिसिट कॉस्ट as well as implicit कॉस्ट। अब implicit कॉस्ट में हम वेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर भी ऐड करेंगे। अगर आपने एंटरप्रेन्योर की वेजेस ऐड कर ली और वो वेजेस उसको इस लेवल पे मिल रही हैं, इट मींस ही और शी इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल एक पर्सन 80,000 पर मंथ की जॉब छोड़ के अपनी खुद की फैक्ट्री लगा लेता है और खुद की फैक्ट्री लगाने के बाद भी ही इज गेटिंग 80,000 पर मंथ। अभी भी उसे 80,000 पर मंथ मिल रहा है, यानी वो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर की कंडीशन पे है एंड ही और शी इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो। क्लियर है बेटा जी? अब आगे चलते हैं, पेज पलट के विल टॉक अबाउट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार आपकी कॉपी में बने हुए होने चाहिए। क्लियर है जी? अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज नंबर सेकंड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। Second is super normal profit। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्या कहेंगे? हम बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट सिचुएशन in which in the short run firm under perfect competition market is getting average revenue is greater than average cost। यानी अब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। बराबर थी तो आपको क्या मिल रहा था? नॉर्मल प्रॉफिट। अब ग्रेटर है तो क्या मिल रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एंड बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर MC is equals to MR फर्स्ट एंड सेकेंड, MC should be rising, जिसको आप क्या बोलेंगे? MC cuts the MR from below। अब फिर बनाएंगे डायग्राम एंड डायग्राम मस्ट बी ड्रॉन 2 टाइम्स। 2 बार बनाया करो बेटा। देखो मैं भी 2 बार बना रहा हूं, प्रैक्टिस हो रही है ना मेरी? हाँ, आप भी ऐसे ही करोगे। ठीक है जी? अब 2 बार बनाएंगे और कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। फर्स्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ऑन एक्स एक्सिस आई एम शोइंग आउटपुट
On y axis I am showing revenue and cost. ये x axis के पैरेलल AR is equals to MR. ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. सेकेंड स्टेप, अब MC is equals to MR and MC should be rising. इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट E. कितना प्रोड्यूस करोगे? OQ. और कितने एवरेज रेवेन्यू मिलेगी? QE और OP. अब आप देखेंगे मेन कंडीशन क्या है? AR इज ग्रेटर देन AC. इक्वल था तो E पे टच कर रहा था, अब AC AR से बिलो है. क्या ध्यान रखेंगे? AC नीचे से जाना चाहिए. अब ध्यान रखेंगे, देखिए AC नीचे से जा रहा है. आपने ऐसे बना दिया कटोरा गोल गोल गोल. ये थर्ड स्टेप है. अब देखिए फॉर्म को Q से लेके A तक एवरेज कॉस्ट भरनी पड़ रही है और Q से लेके E तक रेवेन्यू मिल रही है. तो EA पर यूनिट का प्रॉफिट है और यहां तक ABPE, this much part shown by shaded area is सुपर नॉर्मल, एक्स्ट्रा नॉर्मल भी बोल सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. एबनॉर्मल भी कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म. दोबारा से बनाते हैं. एक बार बनाया, एक बार फिर बनाइए. अब थोड़ा स्मॉल इन साइज इधर साइड में बना देते हैं. पहला स्टेप, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट. AR is equals to MR in the perfect competition market. सेकेंड कंडीशन क्या है? MC is equals to MR and MC should be rising. ये सेकेंड स्टेप हो गया. E पर इक्विलिब्रियम, OQ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करोगे. अब थर्ड क्या है? AR ग्रेटर होना चाहिए AC से, यानी AC AR से कम होनी चाहिए. अब डायग्राम बनाएंगे. ये देखिए यहां A तक एवरेज कॉस्ट, E तक एवरेज रेवेन्यू, EA पर यूनिट आउटपुट और ये हिस्सा ABPA is extra normal profit and it is super normal profit. Is that clear or not? बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए. ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. नाउ द थर्ड इज minimum losses. Minimum losses. अब in the short run, even firm is satisfying both the conditions of equilibrium. अब शॉर्ट रन है, फर्म के कुछ फैक्टर फिक्स्ड हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हैं, तो फर्म का सप्लाई पे फुल कंट्रोल नहीं है, इसलिए फर्म को लॉसेस भी बियर करने पड़ते हैं. अब क्या बोल रहा है? बहुत तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं. इन द शॉर्ट रन even firm is satisfying
both the conditions of equilibrium. कौन कौन सी हैं? That is MC is equals to MR and MC should be rising. ये दो कंडीशन फॉर्म पूरी कर रही है, बट फॉर्म हैज टू बियर मिनिमम लॉसेस. अब इस बात को बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है. कह रहा है फर्म मिनिमम लॉसेस बियर कर सकती है. कब बियर करेगी मिनिमम लॉसेस? इफ. अब ये दोनों कंडीशन ध्यान से देखिए. एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, कि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से बराबर है, तो ज्यादा है. एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, बट फर्म इज गेटिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. फर्म को क्या मिल रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर है किसके? एवरेज रेवेन्यू के. इसका मतलब क्या है कि फर्म को सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट का लॉस हो रहा है, और वो तो फर्म बियर करेगी ही करेगी, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बंद कर देगी तो भी तो फिक्स कॉस्ट नहीं मिलेगी. लेकिन प्रोडक्शन बंद कर देने में फर्म का नुकसान ये है कि इस टाइम पीरियड में कोई नई फर्म मार्केट को टेक ओवर कर लेगी या उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करती रहती है. बट दिस पॉइंट इज नोन एज, अब ध्यान से सुन लीजिए, जहां एबीसी इज इक्वल टू ए आर है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज नोन एज शट डाउन पॉइंट. यानी ये वो पॉइंट है जो शट डाउन है. फर्म ऐसी सिचुएशन में है कि शट डाउन पॉइंट, यानी एबीसी इज इक्वल टू ए आर बी अगर फर्म को नहीं मिल रहा तो फर्म छोड़ के चली जाएगी, कहीं पे भी प्रोडक्शन नहीं करेगी. इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉट एज शट डाउन पॉइंट. क्या कहेंगे बेटा इसको? इट इज नोन एज शट डाउन पॉइंट. अब बनाते हैं डायग्राम, और डायग्राम आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अब ये 3 स्टेप्स में नहीं, ये 3.5 स्टेप्स में बनेगा, यानी 3.5 कदम चलना है इसके लिए. तो अब देखते हैं जरा कैसे बनाएंगे. ये देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? ऑन एक्स एक्सिस वी आर शोइंग आउटपुट, y axis revenue and cost. It's yours. AR is equals to MR. MC cuts the MR from below and MC should be rising. Equilibrium on point E. Q आउटपुट, Q से E तक या O से P तक एवरेज रेवेन्यू मिल रही है, बट नाउ एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू. अब ये ऊपर से जाएगी, ये देखिए लाइन बढ़ाएं, Q से A तक एवरेज कॉस्ट, E तक एवरेज रेवेन्यू, दिस मच पार्ट ABPE इज लॉसेस. पर ये लॉसेस कैसे दिखाने आपने? मिनिमम लॉसेस, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टेंजेंट टू द पॉइंट E. यहां से बनाएंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नजदीक आते जाए, पर टच नहीं करेगी. इट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, and this point where AVC is tangent to the average revenue, it is shut down point.
ये गैप, this much gap is minimum losses, and this point E is shut down point. मैं इसको इधर लिख देता हूं, shut down point. It is shut down point. एक बार दोबारा से इस डायग्राम को बनाते हैं, प्लीज ध्यान से देखिए। जी, अब ये डायग्राम कितने स्टेप्स में बनेगा? इट विल बी ड्रॉन इन 3.5 स्टेप्स। ये देखिए, ऑन एक्स एक्सिस वी आर शोइंग आउटपुट, वाई एक्सिस रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये जगह कम है तो मैं ऐसा बना रहा हूं, लेकिन जनरली सही डायग्राम बनाने की कंडीशन क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 1.5 टाइम्स होना चाहिए, यानी 1.5 गुना। क्यों सर? देखिए, सिंपलेस्ट रूल है, ये तो कोई अनपढ़ भी बता देगा कि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा उस पर बिल्डिंग अच्छी बन ही नहीं सकती। तो जब आप कहीं भी सब्जेक्टिव पेपर दें तो इस बात का ध्यान रखें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है जी? अब देखिए नेक्स्ट, अगला स्टेप, ओ सेम स्टेप है, अभी मैं भूल गया था, आपको याद रहा, वेरी गुड। ए आर इज इक्वल टू एम आर। अब सेकंड स्टेप, कंडीशन क्या है? एमसी इज इक्वल टू एम आर एंड एमसी शुड बी राइजिंग। यहां ई इधर लिख लीजिए, नहीं तो इन डायग्राम्स में फंस जाएगा। क्यू, क्यू से ई तक या ओ से पी तक। अब एसी ग्रेटर है, ये देखिए दिस मच, क्यू से लेके ए तक, ये आपके लॉसेस हैं, ए बी पीई, बट आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ई पॉइंट पे टेंजेंट है, और आपको क्या मिल रहा है? यू आर बियरिंग, फेसिंग और गेटिंग मिनिमम लॉसेस, और पॉइंट ई क्या है? इट इज शट डाउन पॉइंट। क्लियर है जी? ये डायग्राम 2 बार बनाइए, आपको बहुत बढ़िया जो है आपको समझ आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्ड इज मिनिमम लॉसेस। अब 3 कंडीशंस हो गई। अब आइए बात करते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की। घबराइए मत, इसमें बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं है, आप मुझे लग रहा है थक चुके डायग्राम बनाते बनाते, बस एक और लास्ट। सेकेंड कंडीशन इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, तो हम बोलेंगे इन द लॉन्ग रन ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट होने की वजह से फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट गेट्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल रहती है एवरेज रेवेन्यू के। सर क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग रन में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नई फर्म मार्केट में एंटर कर जाएंगी, सप्लाई डिमांड से ग्रेटर हो जाएगी, मार्केट प्राइस डाउन आ जाएगा और फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। और अगर कुछ फर्म्स को लॉसेस हो रहे हैं
तो लॉन्ग रन में कोई फर्म लॉसेस बियर नहीं कर सकती। जो नहीं बियर कर सकती वो मार्केट छोड़ के चली जाएगी, सप्लाई कम होगी, शॉर्टेज होगी और मार्केट प्राइस शूट अप हो जाएगा और फर्म को प्राइस बढ़ने से सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे। और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या रहेंगी? सेम, एंड firm must satisfied both conditions of equilibrium कौन सी? फर्स्ट, अब एमसी क्या बन जाएगी? LMC is equals to MR, and second, LMC should be rising. अब डायग्राम सेम रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट वाला, सिर्फ कर्व्स के नाम बदल जाएंगे। ये एक ही बार बनाऊंगा, 2 बार बना चुका, आप बनाइए 2 बार। देखिए, फर्स्ट स्टेप, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, मैं 2 जितना 1 बना रहा हूं, आप नहीं करना ऐसा। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई पे रेवेन्यू कॉस्ट, AR is equals to MR. Now LMC cuts the MR from below. Equilibrium on point E, OQ OP तक एवरेज रेवेन्यू या QE तक। अब LSE टेंजेंट होगा E पॉइंट पे, E पर रखिए पेन और प्यार से मन में बोलते जाइए गोल 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 एंड गोल गोल गोल, ये LSE। E पॉइंट पे फर्म इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स बिकॉज LAC इज इक्वल्स टू AR। तो बेटा जी, हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पीरियड का डिस्कशन करेंगे। तब तक इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।